children, then he has to go to the reason in the bracket. अगर कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें that case was won by that nominated person. He was a brother, and his wife and children objected to it. But that clever man, what he did, he just put a reason in the bracket. भाई का नाम लिखा, भाई का पता लिखा, एज लिखा, सब कुछ लिखा. And already sufficient amount has been given to my all the legal heirs. What my brother, the nominated brother, has done in my life, I owe many things to him. This is just a part of it. यह उसने अपने हैंडराइटिंग से लिख के नीचे में इनिशियल किया. कोर्ट हैड टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट. सो इंटरप्रेटर सूट वो होता है, बैंक में लॉकर पड़ा हुआ है, माँ के नाम से केवाईसी है, माँ जाती है वो लॉकर जुड़ाने के लिए, वो पूरा ये देती है, क्या बोलते उसको, आइटिनरी, अंदर भी क्या क्या मटेरियल हो सकता है, वाइफ भी देती है आइटिनरी, क्या क्या हो सकता है. दो क्लेम कर रहे हैं बैंक को, मैं क्या बोल, ये भी मांग रहा है वो भी मांग रहा है. यू को तो बोलते नहीं आपको देना है, वो माँ बोलती कि मैं क्यों केस डालूँ, भी बोलते पास इतना पैसा नहीं है कि जितनी अमाउंट का वैल्यूएशन वहाँ है, तो क्या है. तो सबसे अच्छा है भैया एक काम करो, मैं जाता हूँ बैंक में, मैं इसको भी डिफेंडेंट बनाता हूँ, इसको भी डिफेंडेंट बनाता हूँ, और कोर्ट को बोलता हूँ बाबा तू बता, मैं नहीं कहता. दिस इज इंटरप्रेटर wherein the plaintiff who don't have any interest, but he wants to give that thing, he wants to get discharge of his duties, files a suit wherein he don't have anything, any right, interest in the property or in the subject matter. पढ़ रहे ना? अरे भाई. In every suit of interpreter, the plaintiff shall, in addition to the other statement necessary for plaintiff, states A. That the plaintiff claim no interest in the suit in the subject matter in dispute other than for charges or costs. B. The claim made by the defendant severally, and C. That there is no collusion between the plaintiff and any of the defendants. सिर्फ उनको क्या चाहिए कि भैया ये इतने दिन मैंने रखा है, ये लॉकर का रेट अभी तक उन्होंने भरा नहीं है, वो भर के दो, मैंने जो खर्चा किया वकील के ऊपर उतना पैसा मेरे को दे दो, और जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट को लगता है कि है उसको दे दो भैया, मेरे को नक्की करो. दिस इज इंटरप्रेटर सूट. क्लियर? पढ़ लेना बात. चलो अभी जाएंगे ऑर्डर 36. स्पेशल केस यानी क्या है? स्पेशल केस ये एक बहुत ही रेयर ओकेजन होता है जहाँ पे कोर्ट में जाता है, क्योंकि व्हाट ऑर्डर 36 रीड्स, फॉरवर्ड टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन. 1. Parties claiming to be interested in the decision of any question of fact or law may enter into an agreement in writing stating such question in the form of a case for the opinion of the court and providing that upon the finding of the court with respect to such question, a sum of money fixed by the parties or to be determined by the court shall be paid by one party to the other of them, or some property movable or immovable specified in the agreement shall be delivered by one of the parties to the other of them, or one or more parties shall do or refrain from doing some other particular act specified in the agreement. एग्रीमेंट के कॉवेनेंट्स में अगर कुछ एम्बिग्विटी है और अभी देना चाहिए कि कभी देना चाहिए, बोलता कि अभी दे दो, तो वो बोलते मुझे देना है लेकिन दिस इज नॉट द टाइम आई शुड गिव. नाउ सच स्पेशल केस कैन बी रेफर्ड टू द कोर्ट. इन such cases what happens, both are agreeable to the terms and conditions of the agreement, they don't dispute the covenants, but the action taken to be taken on those covenants is in dispute. This is to be resolved by the court by giving by obtaining its opinion. This is special in simple. तो रेयर होता है, ये बहुत कम होता है, अपने यहाँ तो नहीं होता, वो तो मेट्रोज में होता है. समरी सूट्स क्या है होता है? समरी सूट का क्या होता है? बेसिकली क्या है? समरी सूट यानी यहाँ पे
प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स मिनिमाइज करके, कोर्ट का समय बचा के समरीली वो डिसाइड होता है. These are called as a summary suits. रिकवरी है बैंक की, एग्रीमेंट है, भैया रिकवरी करना है, एग्रीमेंट है, ये है वो है, तो बैंक कैन फाइल दिस सूट अंडर ऑर्डर 37. लेकिन उसमें एक ध्यान में रखो कि ऑर्डर 37 रूल 1 को बॉम्बे की अमेंडमेंट है, वो पढ़ लो एक बार. मैंने इसीलिए बोला कि यू शुड नो द अमेंडमेंट्स ऑफ आवर स्टेट टू द सीपीसी, बिकॉज जैसे कि देखा हमने कि 14A को बहुत लंबी अमेंडमेंट दी हुई थी, ऑर्डर सीजन 14A बहुत लंबी अमेंडमेंट दी हुई थी. सो यू शुड नो दी अमेंडमेंट्स. सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जब पढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 14A को स्टेट अमेंडमेंट, इसको स्टेट अमेंडमेंट, ऑर्डर 617 को स्टेट अमेंडमेंट. ऑर्डर 617 अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स में स्टेट अमेंडमेंट बहुत बड़ी है अपनी और बहुत स्पेसिफिक है. So you should know the amended portion, the amendment of a state made in the CPC. Necessarily you should know. क्योंकि क्या है, सेंट्रल कोड में इतनी है क्वांटिटी वाइज और बॉम्बे अमेंडमेंट इतनी बड़ी है, तो क्यों है, क्या है, यू शुड नो द डिफरेंस ऑफ दैट, राइट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर 37 रूल 3. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर 37, ऑर्डर 37 रूल 3 should be known to us. Procedure for the appearance of defendant. 1. In a suit to which this order applies, the plaintiff shall, together with the summons under order 2, serve on the defendant a copy of the plaint and annexures thereto, and the defendant may at any time within 10 days of such service enter appearance either in person or by pleader, and in either case he shall file in court an address for services of notice on him, registered address. वो तो हमने देखा हुआ पहले इंस्टेंस में, वो दाखिल होने को ना. 2. Unless otherwise ordered, all summonses, notices and other judicial processes required to be served on the defendant shall be deemed to have been duly served on him if they are left at the address given by him for such service. 3. On the day of entering appearance, notice of such appearance shall be given by the defendant to the plaintiff pleader or its plaintiff's use in person to the plaintiff himself, either by notice delivered or at sent prepared letter directed the address of the plaintiff's pleader or the plaintiff as the case may be. If the defendant enters in the appearance, a plaintiff shall thereafter serve on the defendant summons for the judgment. कैसा होता है, दो समन्स निकलते हैं, समन्स फॉर अपीयरेंस और समन्स फॉर जजमेंट. ये दोनों के बीच में हम लोगों को परमिशन टू लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ता है. यहाँ पे हम लोग एज ऑफ राइट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते. समरी सूट छोड़ के बाकी सभी सूट में एज ऑफ राइट हम लोग हमारा रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन समरी सूट है, यू शुड बी कॉशियस इनफ टू सी कि ये सूट क्या है. इफ द सूट इज अंडर ऑर्डर 37, देन नेसेसरीली फर्स्ट summons of suit for appearance, and before that summons for judgment is issued by the court and applied by the plaintiff, in between you have to necessarily file permission to leave to defend the matter. उसके ऊपर रिप्लाई कॉल होता है, आर्गुमेंट होता है, और आप यू मेक आउट द केस कि भैया डिफेंड करने के लिए मेरे पास इनफ मटेरियल है, कोर्ट कैन ग्रांट यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड योर केस. वो होने के बाद एविडेंस होता है. यहाँ पे एविडेंस एफिडेविट देके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करके जजमेंट डिलीवर हो सकता है. क्रॉस एग्जामिनेशन जितना है मटेरियल प्लेटिंग में लाया हुआ उतने ही ऊपर हो सकता है. यू कांट आस्क एनी अदर क्वेश्चन. जैसा भी सर ने बताया कि एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन. री एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन जो बोला था, बहुत से यहाँ पे इसी वो परेश रावल के यहाँ पे इसी रहता था वैसा क्वेश्चन निकाल बहुत से लोगों के माथे. क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा मैटर आया हुआ है या सवाल आधा ही पूछा गया है which needs to be explained, otherwise no proper meaning could be derived by the court. In such event
explanation to the answers in the cross examination is permissible in the examination. Nothing more than that. ये जो बता रहा था ना, ये हमको आधा ही तोड़ दिया था. We are not allowed, therefore it needs to be explained. Otherwise, वो पीछे में बताते हैं कि हीरो देखता है हीरोइन को गले में हाथ डाल के कर रही है, क्या वो गले लगा रही है किसी आपके, वो चिढ़ जाता है, इधर आता है वो आता है, वो कुछ बोलने जाता है तो हीरो बोलने ही नहीं देता ये. और जब जो जिसके गले में हाथ डाला वो होता है बहना छोटा बहना. अच्छा ऐसा है क्या? समझने के पहले में बोल पड़ा. तो ये जो एक्सप्लेनेशन रहता है कि बहना है, ये नहीं एक्सप्लेनेशन. क्लियर? आगे चलते. तो यहाँ पे ड्यू टू डिफेंड समरी सूट जो होता है उसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत कम होते हैं. अलग अलग नोटिस समन्सेस नहीं निकलते हैं. यहाँ पे सिर्फ दो समन्स निकलते हैं. पहला रहता है समन्स फॉर अपीयरेंस और दूसरा रहता है समन्स फॉर जजमेंट. वो समन्स फॉर जजमेंट जब इशू होता है उसके पहले ग्रांट ऑफ परमिशन टू लीव टू डिफेंड इसकी एप्लीकेशन आती है डिफेंडेंट की, एंड दैट एप्लीकेशन शुड बी नेसेसरीली अनेक्स्ड अलोंग विद द रिटन स्टेटमेंट. वो डिफेंडेंट ने परमिशन दिया और एप्लीकेशन डब्ल्यूएस लगाया नहीं है, चांस गया. जब परमिशन मांगते हो लीव टू डिफेंड की, उसके साथ आपका डब्ल्यूएस विद एनेक्शर अटैच होना ही चाहिए. तब कहाँ जाके कोर्ट को कंसीडर करता है. और वो एप्लीकेशन में व्हाई द डिफेंडेंट इज हैविंग गुड केस ऑन मेरिट्स टू डिफेंड, ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. कोर्ट कंसीडर हाँ भैया इसमें कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो दया दिखा जाने चाहिए करके फिर लीव टू डिफेंड अलाउ होता है. ठीक है. ऑर्डर 38. ये ऑर्डर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एज ए जज एज ए लॉयर ऑर्डर 38 रूल 5 ये हमेशा काम में आता है. पहले हम लोग 1 2 3 4 देखेंगे, बाद में 5 6 लोग जाएंगे. आनंद ते आहे का ऑनलाईन का पहिले पाहिजे. Order 38, arrest and attachment before judgment, arrest before judgment. One, where defendant may be called upon to furnish security for appearance, where at any stage of the suit other than a suit of the nature referred to in section 16, clauses A to D, the court is satisfied by affidavit or otherwise A, that the defendant with intent or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, subclause 1, has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court, or second, subclause 2, is about to abscond or leave the local limits of the court. समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, समझ नहीं. अरेस्ट और अटैचमेंट ये कब होता है? जब सूट डाला जाता है तभी भी, और जब डिक्री हो जाती है तभी भी. ये क्यों होता है? अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो नीरव मोदी या माल्या इंडिया के बाहर नहीं जाते. अब समझ में आ गया? जैसे रिकवरी डाला है तो रिकवरी का सूट है जहां पे मालूम है कि दैट एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी इज देयर दैट ही विल फ्ली अवे, वो गायब हो जाएगा. तो उसके पास से वो प्रॉपर्टी बहुत इमोरल प्रॉपर्टी है, भड़ापड़ अपने पहचान के रिलेटिव के नाम पे ये करेगा, एग्रीमेंट्स कर लेगा, पार्टनरशिप फॉर्म तैयार कर लेगा, वो पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर्टी बताएगा एंड ही विल मेक एवरीथिंग नथिंग. ये पॉसिबिलिटी अवॉइड करने के लिए पहले बात है कि दैट ही शुड बी, जैसे सिविल प्रिजन किसने पूछा था तूने? हाँ, तो सिविल प्रिजन क्या होता है? सिविल प्रिजन इन्हें पिक्चर में बताते वैसा नहीं.
कि वहाँ जाने के बाद एकदम पसीना छूटता है, ऐसा हो जाता है, आंखें वगैरह, ऐसा नहीं होता है। कोई भी घर को, हाँ भैया इसको यहाँ पे रखा जाए, ही शुड नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ इट, वहाँ पे उसको खाना पीना दिया जाए, एसी लगाना, एसी लगा के वो टीवी देख सकता है। दिस इज सिविल प्रिजन, दैट ही इज कन्फाइंड एट वन प्लेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग हिज एक्शंस एंड इनएक्शंस, इज अ सिविल प्रिजन। He is under the supervision and in the custody of the court. It is necessarily not the bars and the things which is presumed to be a prison. No, it's a civil. और जब किसी को सिविल प्रिजन में रखा जाता है, तो मैं अगर किसी को सिविल प्रिजन में रखना चाहता हूँ तो मैं उसको खर्चा पानी उठाता हूँ, which is called as a subsistence allowance. I have to pay that amount. सिविल प्रिजन की ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, कोर्ट ने मान लिया, खर्चा कौन करेगा? सरकार थोड़ी करेगी, ये तो मैंने करना है। मेरे को मेरी जो उससे पैसे वसूलना है उसके लिए उसका वहां रहना आवश्यक है, करके मैं दे रहा हूँ। तो अभी 28 तारीख तक ना बहुत वो बकरे को खिलाएंगे ना, वैसा है कि नहीं बॉस? 28 तारीख को किसको कौन कौन याद करने वाले, किसको याद करो? देखो सवाल ठीक है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज ऑर्डर 3825. दिस इज applicable as well as explanatory provision. An application for attachment of a judgment can be made or has to be made under order 38. Application under order 38 rule 5 of the code of civil procedure for attachment of the property. जहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, कोई भी एप्लीकेशन रहे, उसमें डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए जो 60 में बार्ड नहीं है। सेक्शन 60 बताता है कौन सी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी छोड़ के यू कैन आस्क फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी अटैचमेंट survives till the decision of the suit, not beyond that. Before judgment यानी या जजमेंट होने तक प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, उसकी वैल्यू कम ना हो, उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना हो, और वो जैसे है वैसे ही स्थिति में रहे, इसके लिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रायर टू जजमेंट की जाती है। क्लियर? अरेस्ट भी उसी कारण होता है। अरेस्ट यानी वो हैंडकफ लेके उसको घुमाया नहीं जाता। He is confined to one place, at one place, by seizing his all lockers, all cupboards. His all actions are seized and he is kept in a very good manner, maintained. उसकी दवाई का भी खर्चा, बीपी बढ़ गया तो जिसने सिविल प्रिजन में डाला है उसको ही टेलमा की गोली लेके जाना है, देना पड़ता। नहीं करो इसी हो, और ज्यादा बिरयानी खिला दिया तो फिर लोगों में जाके देना पड़ता, दो मोटी ले लो। और क्या? हाँ, इट इज अ गुड क्वेश्चन, रेलेवेंस अच्छा है इसके सवाल का कि रेड होती है तो उनको रखा जाता है। इट इज नॉट सिविल प्रिजन, इट इज स्टॉपिंग हिज एक्शंस एंड मूवमेंट्स टिल द रेड इज कंटिन्यू। इट इज नॉट सिविल प्रिजन। सिविल प्रिजन के लिए ऑर्डर होनी चाहिए, रेड के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। रेड देखिए याद करो अजय देवगन का, और सौरभ शुक्ला को हिलने ही नहीं देता वो, और सौरभ शुक्ला को बेटा तू बैठ बेटा, देखो जितने फोन करने तू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही से कर, ये कुर्सी से कर। दैट इज समवॉट डिफरेंट, इट इज नॉट सिविल प्रिजन। सिविल प्रिजन यानी कैसी कि द मोमेंट केस इज फाइल्ड एंड द एप्लीकेशन इज मूव्ड एंड देयर इज ऑर्डर ऑन दैट एप्लीकेशन दैट यस the plaintiff has made out the case for putting the defendant number so and so in civil prison. Hence, following order is passed. The defendant number 4 is hereby confined to civil prison. All his actions will be restricted and under the supervision and permission of the court only. If he has to move, he has to apply for the permission. If granted, then only he can. All his properties, lockers, cupboards, bank accounts are hereby seized. And he is restrained from operating all the things, bank accounts, FDs and so on, so and so. This is civil. जहाँ पे सिविल प्रिजन का ऑर्डर होता है कि कहाँ कन्फाइन रखा जाता है, उसकी प्लेस भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
कि तो आज यहाँ रखा कल वहाँ रखा, ऐसा नहीं चलता. Where he has to be confined, that place should be mentioned in that order. Plaintiff has to apply. उसने बोल दिया कि भैया मेरे गोडाउन में रखो उसको, देखा ना कोर्ट परमिशन. हाँ, यानी बेचारा जाएंगे तो रहमान रहेगा, बाहर निकले तो हनुमान बन जाएगा. कौन देगा उसको? ऐसा नहीं होता. ठीक है ना? आज तो ट्वीटर रेट बैठे. हाँ, ऑर्डर 38 झाला. 39 के बारे में हम लोगों ने उस दिन अच्छे से पढ़ा है. इट इज अच्छा, कल एक सवाल पूछा था मैंने. लोन लेते वक्त इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है. मूवेबल का क्या होता है? ये बैंक वाला है ना, मतलब तो वही आंसर देगा. सेम है. इट इज टू बी kept as a security. Only thing is that when it is immovable property, it is mortgage. When it is movable property, it is hypothecation. My vehicle is hypothecated. और जैसा लोन खत्म होता है हाइपोथिकेशन का चार्ज होता है वो निकाला जाता है. फ्रेश आरसी अपने को मिलती है. यहाँ पे कोई चार्ज लगा होता है. फाइनेंस बाय SBI, फाइनेंस बाय यूनियन बैंक, वो निकल के यू आर दी ओनली ओनर इन दैट आरसी. दिस इज हाइपोथिकेशन. क्लियर? 39(1) and 2. It is the application seeking injunction during the pendency of the suit. एक वर्ड पे ध्यान रखो. It is an application seeking injunction during the pendency of the suit only by seeking restrainment from the action or inaction of the other side. जैसे मैंने बताया, एक्शन तो ठीक है कि भैया हमको इतना ही पता है, स्टे मिल गया है, आपने वो काम बंद करना है, हाथ रोकना है. ऐसा नहीं है. इनएक्शन ये है कि 18 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, 27 महीने हो रहे हैं. 18 महीने में थर्ड फ्लोर का सीलिंग हो जाना था, फोर्थ फ्लोर का चालू हो जाना था, काम वो नहीं हुआ है, सेकंड फ्लोर पे अटका हुआ है. ग्रांट सीकिंग इंजंक्शन आस्किंग हिम टू रिस्ट्रेन फ्रॉम हिज इनएक्शन, नॉट टू कंस्ट्रक्ट. Ask him to construct during the pendency of the case. This can be also an injunction. सिर्फ एक्शन रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं होता, इनएक्शन रोकने के लिए भी इंजंक्शन हो सकता है. एक्शन और इनएक्शन, ये एस्पेक्ट बहुत कम लोगों को पता होता है. ऐसा नहीं है. पढ़ रहे अभी, कौन पढ़ेगा? पढ़ो, जरूरत किताब नहीं है, पढ़ो. Temporary injunctions and interlocutory. इंजंक्शन, एन का वहाँ अनुस्वार आना चाहिए. इंजंक्शन. Case in which temporary injunctions may be granted, where in any suit it is proved by affidavit or otherwise, A, that any property dispute in a suit is in a danger of being wasted, damaged, or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or B, that the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with view to his creditor. C, that the defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. The court may be by order grant a temporary injunction or injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal, or disposition of the property, or disposition of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property dispute in the suit, as the court thinks fit, until the disposal of the suit or until further order. बराबर है. अब कैसे हो गया? अगर एखादा ये डालता है, बिल्डर ही केस डालता है प्रोस्पेक्टिव परचेसर्स के ऊपर, फ्लैट ओनर्स के ऊपर, और काम रोक देता है, तो इंजंक्शन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट सेइंग दैट बाय फाइलिंग दिस सूट ही हैज स्टॉप्ड हिज एक्शन. नाउ इसमें क्लॉज क्या है? बाय डैमेजिंग द प्रॉपर्टी. वैसी की वैसी पड़ी हुई तो डैमेज हो रही है ना भैया.
ना उसके ऊपर पानी गिर रहा है, आधे अधूरा है, हवा आएगी, कुछ नहीं आएगा, अगर कॉलम प्रॉपर्ली फिलअप नहीं होंगे तो जो मटेरियल भरा हुआ है आधा अधूरा वो भी गिर जाएगा. There is a endanger to the other person. So to stop this endanger, proposed endanger by the plaintiff, ask him to complete at least primary work to secure the safety of the persons. Clear? अब ये है, इसमें पहला पार्ट क्या है? Any party can apply on affidavit, right? अच्छा, what is the difference between final order, interlocutory order and an order? देखिए फिर से मैं हिंट देता हूँ, हर सवाल का जवाब सवाल में ही 80% होता है. शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, शपथ कहाँ ली? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की शपथ यह रायरेश्वर या कोई रोहिडेश्वर बोलता है मंदिर में ली. बराबर है, 80% सवाल का आंसर उसमें था. अब व्हाट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, व्हाट इज फाइनल ऑर्डर एंड व्हाट इज एन ऑर्डर? अभी जज बनने जा रहे हो ना, पता तो होना चाहिए. क्लियर है तो नहीं नहीं टेम्पररी ऑर्डर नहीं है, बात ऑर्डर है. वो स्टेटस होता है, तात्पुरता है ना स्टेटस. व्हाट इज ऑर्डर? स्टे एज इट इज द स्टेटस क्यू till the final order comes. So that is called as ad interim. It's not interim. Ad interim. What you are talking about is ad interim, not interim. Clarity रखो बस. लॉ में क्लैरिटी रखो, तब क्या मजा आता है. एक सीपीसी की किताब लो और ऐसी लेके एक गाना बोलो, तुम मिले दिल मिले और जीने को और क्या चाहिए. और आईना देख के वो बोलना है ना तो हो उदास मेरे आसम पास तू रहे जिंदगी भर, तब ना जाके जज बनेगा. बिल्कुल ये देखना है चीजों में, देखनी चीजों में लोगों वैल्यू. चलो पढ़ो खुद भी. पहला है एफिडेविट के ऊपर होना चाहिए एप्लीकेशन. क्या के लिए होनी चाहिए? ये है, ऑर्डर इज एनी एक्सप्रेशन गिवन बाय द कोर्ट बाय वे ऑफ अ डायरेक्शन और giving its verdict on simple application. Application of grant of adjournment. So that the counsel for plaintiff is in and he can't appear before the court. Adjournment granted for today. This is order. It's an order. Is it either final order nor interim order or interlocutory order? It's an order. Any expression given by the court on any application is an order. That expression should be a decision-making expression. Any deciding expression on any application is an order. Clear? Then that order can be divided in two parts. Interim order or final order. The interim order can be divided in one more part, ad interim order. अभी हम लोग Z से ही जाएंगे. ad interim कब देता है कि इंटरिम ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइनली एडजुडिकेट होने के पहले भैया कुछ लॉस, इमीडिएट लॉस ना हो करके स्टेटस को एज इट इज, यानी अगर मैं जल्दी स्टेटस को बोलते तो मैं इसी करूंगा. स्टॉप. This is identity. Statute is identity. बाद में फिर वो इंटरिम के एप्लीकेशन के ऊपर एडजुडिकेशन होगा. बाद में फिर वो ऑर्डर करेगा कि ठीक है भैया, he has made out a prima facie case, irreparable loss could be caused to him and balance of convenience lies in the favor of plaintiff. Hence, the application for grant of temporary injunction is allowed or by final order. The application at exhibit 516 जो भी होगा वो is hereby allowed. The defendant plaintiff is hereby, जो भी है वो defendant ने क्या होगा तो plaintiff ने क्या होगा तो defendant is hereby restrained from demolishing the wall, constructing the wall by
या फिर उसने पानी बंद कर दिया है, he is hereby restrained from disallowing the defendant from defendant application के सूट डाल दिया और पानी भी नहीं दे रहा, he is hereby restrained from disallowing the defendant from use and utilize and enjoy the water supply. That means वो टैप खोलना ही पड़ेगा. This is injunction. अब interlocutory order और final order इसमें फर्क क्या है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इसको मैं जैसे कुछ आजकल के लोग कोड या कार्ड बोलते हैं, कुछ अलग ही कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्ड, कुछ क्या बोलते हैं कार्ड कोड, कुछ अलग ही बोलते हैं. तो ऐसे इंटरलोकेटरी, इंटरलॉकिंग, एनी ऑर्डर विच इंटरलॉक्स द एक्शन और इनएक्शन ऑफ अ पार्टी इज अ इंटरलोकेटरी. इंटरलॉक करता है उसके एक्शन या इनएक्शन, इंटरलोकेटरी ऑर्डर है. 38(5) इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है. क्यों? अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जैसी प्रॉपर्टी को स्टैच्यू दे दिया मैंने, इंटरलॉक हो गई प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बराबर है. वो जब तक इंटरलॉक हो गई है कब तक हो गई है वो? टिल द जजमेंट ऑफ द केस. क्या वो एप्लीकेशन सेट असाइड कर सकता है क्या कोर्ट की ऑर्डर? इंटरलॉक्यूटरी नहीं कर सकता. देयरफॉर that order has reached finality. इंजंक्शन एप्लीकेशन एक बार अलाउ हो गई, कोर्ट ने दे दिया, तो डिफेंडेंट बोलेगा कि साहब प्लेंटिफ को इंजंक्शन दे दिया, आप उसको इंजंक्शन हटाओ. कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. उसको अपील ले जाना पड़ेगा. क्यों अपील जाना पड़ता? रिवीजन क्यों नहीं? बिकॉज दीज एप्लीकेशंस द ऑर्डर पास्ड ऑन इट हैव रीच्ड फाइनलिटी and no final order is reviewable. Every final order which has reached finality is a appealable order. ये हमेशा ध्यान में रखो. Any order which has reached finality is a appealable order. No revision lies against it. जहाँ पे रिवीजन भी नहीं है, अपील भी नहीं है, वहां पे रेट पिटीशन होती है. क्लियर? तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑर्डर 38 रूल 5 यहाँ अपीलेबल ऑर्डर है. ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 अपीलेबल ऑर्डर है. पहले ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेन रिजेक्ट ही हो गया तो क्या बचा? अभी फाइनल ऑर्डर हो गया ना. तो कुछ लोग रिट में जाते हैं, कुछ लोग अपील में जाते हैं. राइट इज अ अपील. अपील दो टाइप की होती है, अपील अराइजिंग आउट ऑफ द ओरिजिनल डिक्रीज एंड अपील अराइजिंग आउट ऑफ द एनी अदर ऑर्डर्स. अब वो पढ़ेंगे हम लोग. 39 क्लियर हो गया. 39(2)(a) एखादा ऑर्डर हुआ है, फिर भी वो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ वो ओबे नहीं कर रहा है, करके फिर 39(2)(a) फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 बाय द कोर्ट. ये एप्लीकेशन वही कोर्ट में डालनी पड़ेगी जिसने 39 1 and 2 के ऊपर ऑर्डर किया हुआ था. क्लियर? कंप्लायन्स करा म्हणजे की ऑर्डर झालेला आहे, दोन आहे. जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है उसको वो ऑर्डर सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ता है. मैंने वो कम्युनिकेट उनको किया हुआ है, ये उसका एफिडेविट दाखिल करना पड़ता. दैट इज कंप्लायंस. मेरे को बताया गया कि हाँ वो आई एम प्लेंटिफ, मैं जाता हूँ कोर्ट में. बिफोर द समन्सेस आर इशूड आई से दैट कि सर आप समन्स निकालोगे, वो आएगा अपना डिफेंस देगा, तब तक तो दीवार टूट जाएगी पूरी. वो तोड़ना चाहता है. तो जैसे वो पीछे बताते ना, वो दौड़ते इससे आ गया करके वो सब बताना पड़ता कि ऐसा सा ऑर्डर हुआ है और मैंने ये ऑर्डर सामने वाले को बताया. इसका जो कंप्लायंस एफिडेविट है वो मानना पड़ता कि मैंने सूट की कॉपी दिया, मैंने प्लेन की कॉपी दिया, सूट के साथ जो एनेक्स फाइल किया वो उसको दिया और ऑर्डर की कॉपी भी उसके साथ मैंने उसको दिया हुआ है. यानी कि having knowledge of the order passed by the court. ये एफिडेविट के ऊपर जो देना पड़ता है उसको कंप्लायंस एफिडेविट. क्लियर? हाँ. ये रिसीवर क्या होता है? फिर से वही है, व्हाट इज रिसीवर? जो रिसीव करता है वो रिसीवर कौन होता है, क्या होता है?
मग तसंच आहे बराबर मैं वही एग्जांपल दिया हूं कैसा है नौकरी के कारण माँ और बाप दोनों बिजी हो जाते हैं बच्चे को संभालना पड़ता है दादी और नानी दोनों बहुत होशियार है साले हम क्या उसके लिए पैदा हुए क्या दादी बनी नानी बनी संभाल लीजिए फिर हम दाई रखते हैं बराबर है वो दाई को हम पैसे देते हैं और फिर वो दाई बच्चा अगर 4 साल का है तो उसको दूध देगी बिस्किट लाके देगी ब्रेड देगी बटर देगी ये करेगी वो करेगी उसका खर्चा करेगी वो खर्चा जो किया हुआ है वो भी देना पड़ता है कोर्ट जो दाई को अपॉइंट करता है प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए वो रिसीवर होता है सिंपल लैंग्वेज में याद रखने की आसान है when there is any dispute that take an example it happens in the case of partnership from companies and banks where the receivers are appointed why companies banks and firms those are artificial person created by a law if the natural persons administering the artificial person are in default or are of a nature in making defaults then who will pay back to the dividend owners shareholders who will pay to the preferential what are the, how many types of creditors are there ये रिसीवर का जब हम सीखेंगे तो हमको क्रेडिटर्स मालूम नहीं है who are the debtors and who are the creditors तो बाकी लोग है ना बे सांग बाबा तू सांग नहीं वो सबने ट्राय करने बोला बॉस तो सबको इंटरव्यू देना है हाँ डेटर और क्रेडिटर नहीं क्या डिग्री के बहुत बाकी है आज की तारीख में मैं डेटर हूँ आज की तारीख में क्रेडिटर हूँ बैंक का सूट दाखिल भी नहीं हुआ फिर भी सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिटर यानी जिसको मुझे पैसे देना है वो क्रेडिटर है और जिससे पैसे वसूलना है वो डेटर है सिंपल लैंग्वेज में अब डेटर के भी 2 टाइप होते हैं क्रेडिटर के 3 टाइप होते हैं वो क्या होते हैं सुंदरी डेटा है क्या उसे स्पेलिंग देखिए उसे स्पेलिंग है सैंडरी का एचओ हिंदी है तो मैं अमिताभ बन जाऊंगा TO2 DO2 तो गोवे जियो वो क्यों होता है What are the types of creditors? अब डीजे चल 10-20 मार्क दे दिए सिक्योर क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योर डेटर्स अनसिक्योर्ड डेटर्स ये हो गया सेकंड मटका हिला निकल जाएगा नहीं अबे खाना मुझे करना कोई सही समझा नहीं है ना पूरे सावधानी भरे हुए यहाँ पे झावाला एक भी नहीं दिख रहा मेरे देखो पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स बाद में है प्रेफरेंशियल लेटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उसके ऊपर है मैंने बताया वो इसने क्या बताया सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी मेरे को देना ही पड़ेगा पहला उसका जैसा मैं लोग रिसीव हूँ मैं मेरे पास लोगों से पहले डेटर लोगों से पैसा जमा किया तो क्या रहता वो गवर्नमेंट का टैक्स दो गवर्नमेंट का सेस दो लोगों की पगार ये सेकंड रहेगा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है जिनको मैंने पे पहले करना चाहिए जैसा पैसा मिलता है एक कंपनी है जो अवसायन में गई जो लिक्विडेशन में गई लिक्विडेशन में जैसी कंपनी जाती है रिसीवर अपॉइंट होता है बाय कोर्ट ऑर्डर वहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर्स होते हैं हाई कोर्ट में लिस्ट होती है उनकी वो उसमें का एक जन रिसीवर करके अपॉइंट होता है जैसा रिसीवर अपॉइंट होता है वो कंपनी के पास जाता है आई एम द रिसीवर यू गो वो सबको बाहर निकाल लिटरली बाहर निकालता है कि आज द कीज ऑफ एवरी कबर्ड एंड ड्रॉवर मुझे दिखाओ और सुपरिटेंडेंट ऑफ दैट सेक्शन इज कॉल्ड
पहले ये रजिस्टर यहाँ रख, बुक्स ऑफ अकाउंट वाले को बुलाया जाता है, तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बता, इसका पासवर्ड बता मुझे, वो पासवर्ड लिख लेता है, क्या है उसका आईडी और पासवर्ड, हर अकाउंट का हर इसका वो लिख लेता है, उसको तो यही रुको। वो सब होने के बाद वो देखता है कि किससे कितने पैसे देने बनते हैं। देने की बात में बाद में आएगा, पर देने के लिए पैसा होना तो चाहिए। तो फिर ये सन्ड्री डेटर्स यानी चिल्लर, जिसको छुटकन बोलते हैं, वो रहते हैं। फिर प्रेफरेंशियल डेटर्स को होता है कि जिनसे गिरेबान ने हाथ डाल के वसूल करना आवश्यक बन गया है, वो है प्रेफरेंशियल। आपने इसने जो बताया वो सिक्योर्ड, भैया इन्होंने मॉर्गेज रखी हुई है प्रॉपर्टी, इन्होंने ये भैया तू जल्दी मेरे को पैसे दे रहा कि मैं तेरी ये मोटरसाइकिल भेज दूं, या हाइपोथेकेटेड व्हीकल है, इसका ऑप्शन करो। बोलता भैया रुक जाओ, 12 EMI 8 EMI है ना, पर 6 अभी देता हूँ। ये सिक्योर्ड डेटर्स, उनसे पैसा आ गया, देन ही विल पुट एवरीथिंग इन अकाउंट, देन ही विल प्रिपेयर अकाउंट फॉर दैट, देन ही विल डिसाइड हु आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, who are the secured creditors. Secured creditors का लिए वो second preference देगा, because their debt to be given is secured one, either this way or that way. जैसे काफी ट्रस्ट में ये बात लोग कर जाते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मेरे एजुकेशन फंड यहाँ पे दिया हुआ है, 10 लाख मैंने डाल दिए हैं, जब कभी भी जरूरत पड़ी तो उसमें से जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा वो उसके एजुकेशन के लिए खर्च हो जाएगा, कर दिए ना तजवीज उसके लिए। दिस इज व्हाट इज द सिक्योर्ड वन। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको नंबर 2 पे रखेगा, लेकिन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गवर्नमेंट का पैसा, टैक्सेस, पेमेंट्स, जो आवश्यक पेमेंट्स है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। उसके बाद आते हैं MSC BPS, ये वो सेमी गवर्नमेंट का जितना पेमेंट है वो, और थर्डली आता है सैलरी ऑफ द पर्सन। वो सैलरी ऑफ द पर्सन जो है वो पूरी नहीं दी जाती, वो प्रोराटा बेसिस के ऊपर भी वो दे सकता है कि भैया तेरा पगार 5,000 रुपए क्या, तो 3-3 हजार रुपए ले काम कर, तेरे को बिना पगार का रख नहीं रहा हूँ, लेकिन पूरे 5,000 रुपए, तेरे एरियर्स कितने हैं 5 महीने के, 25,000 है ना, ये 18,000 रुपए टोवर्ड्स एरियर्स और 3,000 पे काम कर। ये प्रोराटा बेसिस के ऊपर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है प्रेफरेंशियल थर्ड वन, और ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर इसके घर देने होटल का बिल आया, उसने नहीं दिया। प्रेफरेंशियल इसमें क्रेडिटर्स में और एक आता है, रिसीव करते वक्त जो खर्चा लगा वो पैसा इमीडिएटली देना पड़ेगा। जैसी प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ मैं, वहाँ लॉक लगाया है, तोड़ के अंदर जाना पड़ा है, पुलिस का खर्चा दिया है मैंने, जो भरना पड़ता है। ऑल दीज आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। व्हाई? दैट अमाउंट हैज बीन स्पेंट ओनली टू सिक्योर द प्रॉपर्टीज टू बी रिसीव्ड। This is the job of a receiver. अब क्या है ऑर्डर बॉडी, कौन पढ़ रहा था? माइक कौन पढ़ रहा था? ऑर्डर बॉडी। Appointment of receivers. Appointment of receivers. Where it appears to the court. हे वो वास्तव में where it appears to the court. Where it appears to the court to be just and convenient, the court may by order appoint a receiver of any property, whether before or after a decree, remove any person from the possession or custody of the property, commit the same to the possession, custody or management of the receiver. एक मिनट, पता है सब कुछ, वो चाबी लेता, ये लेता, वो लेता, ये है ऑर्डर 40 रूल 1। ड्यूटीज, वो उसने क्या करना चाहिए, जो भी वो खर्चा पैसा मिलता है उसको रिसीव करता है, उसका अकाउंट मेंटेन करना है, जिसको दिया उसका ब्यौरा उसको मेंटेन करना है। दीज आर दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये टाइम टू टाइम जो कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है उसको रिसीव करके वहां उसे सबमिट करने को होना। यूजुअली अगर नहीं करता है देन इट इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर, एंड he is a good receiver. Without the court's intervention, he submits his monthly or bi-monthly report to the court. He is a good receiver. कि मेरा प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं। Why? There are two things behind it. Number one reason is that he is discharged from his duties. जेव्हा चाहे तेव्हा जितने तिथे वो कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। कोर्ट को आसानी आती है, सेकंड इज कोर्ट को आसानी आती है कि डिटरमाइन कि ये केस कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुका है।
बराबर है. This is the greatest assistance to the court if the reports are submitted on regular basis. हाँ, अब आएंगे हम ऑर्डर 41. This is first appeal. Now read. Order 41 has to be read first with the section 96 and then order 41. तो पहले 96 पढ़ेंगे, उसके बाद order 41 पढ़ेंगे. और कहाँ गए भाई? हाँ, दे दिया आगे दे. क्या? क्या होता है? नहीं, basic theme is the same. The procedural aspect and the reason behind it are different. Theme is the same. Liquidation उसमें भी वही है जो यहाँ है, लेकिन वो तरीका अलग है, कारण अलग है, और किसने करना चाहिए वो अलग है. Theme is the same. The theme is the basic one, but those are totally different. You can't say that both are same. No, only theme is the same. But 96 पर पहले, section 96. ढूंढो साइड में तो दूसरे को दे. भाई माँ बाप को कितनी तकलीफ देगी? 5 साल के बाद 4 साल के बाद माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी? तो पहले फोटो कौन सा चूज करो वही पता नहीं लगेगा तेरे को. कितनी ढूंढ रही है? Section 96 appeals from original decree, save where otherwise expressly provided. मैंने क्या बताया था? व्हाट इज सेविंग क्लॉज? व्हाट इज सेविंग क्लॉज ये बताया था मैंने पहले लेक्चर में. सेविंग क्लॉज बताया था, जब इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने बताया था. व्हाट इज सेविंग क्लॉज? कोई भी एनैक्टमेंट एक्ट लो उसमें सेविंग क्लॉज होता है. वो क्या होता है? हाँ, वो ऐसे याद आ गया ना. हाँ, ये एक्शन याद आ गया. क्या है अभी याद आ गया? ये एक्ट में से यहाँ सेव किया हुआ है और ये एक्ट को मैं डाल रहा हूँ और खत्म हुई. सेव एक्सप्रेसली एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, यानी यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के लिए ही अप्लीकेबल है. तो ये क्या था बराबर? This code or by any other law for the time being in force, and appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. रुक गया. Subsection. रुक गया. अभी कैसे हो गया? इसं कैसे पडा? आणि म्हणून महाराज तिथे गेले आणि त्यांनी ते मुकुंब केलं तिथे जेवले ते त्यांपैकी कोणी फोटो घेऊन गेले आणि मोठी ढेकत दिली. लॉ ऐसा नहीं पढ़ा जाता बेटा. लॉ कैसे पढ़ा जाता है? हाँ, मैं कहाँ हूँ? नहीं, बड़ा बड़ा आगे में हाँ, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री. पहली बात, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री, यानी ये 96 जो है इसका स्कोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के अगेंस्ट में है. एनी अपील विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द डिग्री. बराबर है. फिर save where the otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie, number 1, from every decree, number 2, passed by any court exercising original jurisdiction, number 3. यानी it has to be a court having competent jurisdiction of original nature, and he should have adjudicated the case in entirety and must have passed a
decree, then only section 96 comes into picture. फिर वो कहाँ मिलेगा अपने को? We find it at order 41. ठीक है? हाँ एक मिनट पहले subsequent to an appeal may lie from original decree passed ex parte. ex parte भी अगर होता है, हाँ order 9 rule 13 का application हमने नहीं किया. What is order 9 rule 13? Setting aside ex parte decree वो नहीं किया. Then order 96(2) में under order 41 that decree can be challenged. बराबर है? Number 3, no appeal shall lie, mandatory, from a decree passed by the court with consent. Compromise decree में appeal नहीं होती. Clear? 4, no appeal shall lie except on question of law from a decree in any suit or nature cognizable by court of small causes when the amount or value subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees. करके रिवीजन. क्लियर? अब ऑर्डर 41 पढ़ा जाए. कौन होते हैं? क्या करेंगे? कुछ पढ़ो रे 41. ऑर्डर 41. Order 41. Appeals from original decrees. Rule 1. Form of appeal. What to accompany memorandum. Subsection 1. Every appeal shall be preferred in the form of memorandum signed by the appellant or his pleader and presented to the court. तू पढ़ेगी तो टाइम पास जाएगा. मैं अपना समय बचाता हूँ. रखो. फिर ध्यान यहाँ. 41 में क्या होना चाहिए? पहला है कॉस्ट टाइटल. कोई भी प्लीडिंग लो, चाहे क्रिमिनल के लो, सिविल के लो, कंज्यूमर के लो, कोऑपरेटिव के लो, एसएलपी के लो, रिट के लो, सेम रहता है. सीपीसी करके गुरु है. कॉस्ट टाइटल में नेम ऑफ द कोर्ट, अपेलेट कोर्ट है. तो वेदर द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो हैविंग पावर्स ऑफ फर्स्ट अपील. जूनियर डिवीजन की इसमें अगर मॉनेटरी वैल्यूएशन के हिसाब से, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन के हिसाब से अगर फर्स्ट अपेलेट कोर्ट कौन सा होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है. तो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज और बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट नागपुर बेंच, जुडिकेचर एट बॉम्बे बेंच एट नागपुर, ये दो में से एक होगा. बराबर है. उसके बाद अपेलेंट. यहाँ पे नॉमिनक्लेचर ध्यान में रखना है. अपील में अपेलेंट होता है, रिवीजन में अप्लीकेंट होता है. अपेलेंट स्लैश या अंडरलाइन, उसके नीचे ब्रैकेट में ओरिजिनल डिफेंडेंट अगर वो डिग्री हुआ है सूट तो. ठीक है? उसका पूरा ब्यौरा, नाम, पता, एड्रेस, आज की उम्र, क्योंकि 5 साल का सूट होगा वहाँ पे 54 होंगी तो यहाँ 54 नहीं आएगी, यहाँ 59 आएगी. तो पूरा वर्सेस रिस्पोंडेंट्स स्लैश ब्रैकेट में ओरिजिनल, प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2 और डिफेंडेंट्स होंगे वो डिफेंड नंबर 3, 4, 5. जितने पार्टी सूट में थे वो सभी पार्टी अपील में होना आवश्यक है. पहली बात, अपील अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री पास्ड इन अपील अंडर ऑर्डर 41 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेड विद सेक्शन 151 इसके लिए दिया जाता है कि इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करने का काम पड़े तो कर सकता है कोर्ट. अराइजिंग आउट ऑफ द ओरिजिनल डिक्री पास्ड इन आरसीएस एससीएस नंबर सो एंड सो. बराबर है. ये होने के बाद नीचे में द रिक्विजिट कोर्ट फीस ऑफ रुपीज सो एंड सो इज पेड. जितना कोर्ट फी सिविल सूट में पे किया था उतनी ही कोर्ट फी अपील में भी पे करना आवश्यक है. The same court fee has to be paid in the first appeal. तो वो ब्रैकेट में आएंगे. इतनी कोर्ट फी पे किया है. The appellant herein takes oath and submits as under. Number 1 के पहले एक आता है जिसको इंट्रोडक्टरी प्लासिटम बोलते हैं of the appeal. Being aggrieved by the judgment and decree passed by the 4 joint civil judge junior division Nagpur in RCS number so and so dated so and so. The original defendant number 1 and 2. The appellants herein are preferring this memo of appeal on the following facts and grounds. उसके बाद नंबर 1 और उसके बीच में आएगा फैक्ट्स बोल्ड में, और उसके नीचे 1, 2, 3, 4. The plaintiff had preferred the civil suit for declaration injunction against the present appellant and present respondent number so and so, wherein 2 where he has paid so and so.
that the written statement of this present defendant came to be filed below exhibit so and so on such and such date. The issues were framed, and while framing the issues, the issues were framed. जहाँ तक अगर आप सयाने हो तो जो भी इशू फ्रेम किया है वो डाल दो उसमें आज की तारीख में, क्योंकि आजकल के जो आप लोग वहां जल्दी जाते हैं ना वो इतने आलसी हो गए हैं कि उनको बहुत बोर होता है वो इशू। अरे यार वो क्या है आप ही बताओ, जो सुना हुआ है नागपुर की बात बताओ वो इश्यूज क्या थे। तो अच्छा भैया वही है सर, आप पढ़ लीजिए। तो इश्यूज वर फ्रेम, the evidence came to be recorded of all the parties concerning examination was conducted, and the impugned judgment, impugned means the judgment in challenge, that impugned, वो impugned जो नहीं है, impugned है, जी silent है उसमें। तो impugned judgment came to be passed, hence the present appeal on the following grounds. Grounds का head Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. The lower court और इन नॉट अप्रिशिएटिंग क्या क्या है, क्या ग्राउंड्स है आपके, वो आएंगे। उसके बाद ग्राउंड्स के बाद फिर फॉर्मल प्लीडिंग देंगे। नो एनी अपील इज प्रिफर्ड बाय द प्रेजेंट अपीलेंट्स हियर इन बिफोर इन आइदर एनी कोर्ट और इन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। द appeal is preferred well within limitation. This honorable court has got jurisdiction to entertain and try this appeal. The requisite court fee of rupees so and so is paid thereon. The documents, those were filed in the suit along with the copy of the judgment and decree in question is annexed herewith. Prayer, it is therefore prayed that quash and set aside the judgment and decree passed in RCS number so and so dated so and so by the honorable court so and so. Grant temporary injunction or interim injunction by restraining the so and so to act on the judgment and decree passed by the so and so. Grant interim injunction by way of so and so. ये हो गया। मेमोरेंडम ऑफ अपील का ही पार्ट एंड पार्सल होता है इम्प्यूग्न जजमेंट। इट इज नॉट टू बी फाइल्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील। हमेशा काफी लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम अपील करते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट नंबर 1 जजमेंट एंड डिग्री लिखते हैं, वो गलत है। फर्स्ट अपील का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। काफी लोग करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट नंबर 1 ये डालते हैं। इट हैज टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील। देखो रूल्स देखो, सिविल कोड रूल देखो, उसने दिया हुआ वो हो गया। अफर्मेशन आ गया, सेम होगा, फिर वहां जाएगा, वो नोटिस निकलेगी। यहाँ पे समन्स नहीं निकलते, यहाँ पे नोटिस निकलती है। Every now by way of amendment of 1998, every pleading of whatsoever nature or any application or reply thereto has to be on affirmation. There is a specific rule made in 1998 onward. Everything is to except general applications like adjournment and so on. एक जो मैंने परसों बताया ना, कोई तो जैसे जजमेंट अगर वो मिलता है मुझे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि वहां पे बोला है कि इन मेनी सर्कमस्टेंसेस इंफॉर्मेशन गिवन टू द कोर्ट इफ रिक्वायर्स स्पेसिफिक अटेंशन ऑफ द कोर्ट कैन आस्क एफिडेविट टू द इन सपोर्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ अपील। वो जाएगा जैसे सूट को WS का प्रावधान है SCPC में, अपील में कहीं पे भी रिप्लाई का प्रावधान नहीं है। हम लोग बाय सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट रिप्लाई डाल सकते हैं। हम लोग एज ऑफ राइट देते हैं और कोर्ट ने पूछा कि अरे कहाँ रिप्लाई डाल रहे हो, किसने बताया, तो हम लोग सर उन्होंने अपील दिया तो हमको कोर्ट भी बोलता जानते हैं दे दें। लेकिन राइट वे इज दैट he has filed the appeal. I want the answering respondent wants to file reply to it. It is not written statement. Why it is not written statement? Why it is not written? Reply to the appeal. Why is not a written statement? Is my question. Why the reply to the memo of appeal is not the written statement? Pleading shall mean plain and written statement, order 6 rule 1. इसके अलावा प्लीडिंग कुछ भी नहीं है।
प्लीडिंग बोले तो सिर्फ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, ये मेमो ऑफ अपील है करके प्लीडिंग नहीं है करके डब्ल्यूएस नहीं आएगा, वो रिप्लाई रहेगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अपील में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है इन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मेड आउट बाय द पार्टी अप्लाइंग। उसी सिचुएशन में एविडेंस लिया जाता है अपील में, अदरवाइज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लीडिंग एविडेंस एज ऑफ राइट। इट इज इन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दैट evidence can be recorded or required to be recorded in the appellate stage. Clear? उसके बाद अगर वो मनी डिक्री है, फर्स्ट अपील जो है इट इज अगेंस्ट द मनी डिक्री पास, द कोर्ट कैन आस्क to deposit 50%, 35%, 40% or 100% of the amount with the court for preferring this memorandum of appeal to secure। डाल दिया मैंने अपील डाल दी पर पैसे नहीं देता, ऐसा नहीं होता। देखो अगर सही में टू शो योर बोनाफाइड कि डिपॉजिट 5 लाख की डिग्री तेरे इसमें 2.5 लाख रुपए जमा कर। This is the provision in the order 41 that security or deposit of the money in case of money decree, it can be the court can ask to deposit to secure the and to show the bona fide and right to prefer the appeal. Clear? इसमें जो एमएसटी के केसेस होते हैं, एमएसटी के केसेस कंपनी को डिपॉजिट करने के लिए सभी है, जहाँ पे भी मॉनिटरी क्लेम है वहाँ पे तो पैसे भरना जमा करना ही पड़ता है। डीआरएटी में जाओ 75% का प्रावधान है। डीआरएटी में अंडर द आरडीडीपी एंड एफआई एक्ट रेगुलर ऑफ डेट ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो है उसमें तो 75% का मैंडेटरी प्रावधान है, लेकिन एक स्कोप है वहाँ पे आप वेवर क्लेम कर सकते हो बाय शोइंग दी बोनाफाइड। ऑर्डर 41 रूल 19 इसको इम्पोर्टेंट करके लिख दो। दिस इज एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन बट इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे गार्निशी पूछा जाता है इंटरव्यू में काफी बार, वैसे ये पूछा जाता है। ऑर्डर 41 रूल 19 23A का स्कोप क्या है? व्हाट इज ऑर्डर 41 रूल 23A? छोटा सब है लेकिन बहुत कारीगर है वो। आजकल बहुत से हो रहा है कि हाई कोर्ट में रिट में साहब केस रिमांड कर दो और फ्रेश कंसिडरेशन, बराबर है। इन फर्स्ट अपील द अपेलेट कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन बाय अप्लाइंग हिज जुडिशियस माइंड दैट यस द लोअर कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड दिस वाइटल पार्ट which ought to have been considered. Though the documentary evidence was put forth, there were pleadings to that effect, but still there is no expression on that or opinion on that or any verdict on that thing. Then to the extent of that only, keeping the other decree except the final part as it is, the observations other than those unattended part will be remain the same. कोर्ट कैन रिमाइंड इट बैक कि भैया ये इसके ऊपर एडजुडिकेट कर, ये करने के बाद फाइनल ऑर्डर क्या होता है होगा, क्योंकि दिस वाज वाइडर। सो अंडर व्हिच प्रोविजन द सूट कैन बी रिमाइंडेड बाय द अपेलेट कोर्ट, अगर ऐसा आता है तो ऑर्डर 41 रूल 23A इज द आंसर। क्वेश्चन ऑर्डर 41 रूल 30 जो है वो फिर से वाइवा के लिए काम में आएगा। अपेलेट कोर्ट ने जजमेंट कहाँ और कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए पढ़ लेना, एक्सप्लेनेटरी है। और जो मैं बता रहा हूँ पढ़ लेना चाहिए तो सही में पढ़ लेना चाहिए, उसको अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए समझ कर।
और जजमेंट राइटिंग में जो कुछ काम में आता होगा, अपील का जजमेंट, तो ऑर्डर 41 रूल 31 में अच्छे से करो, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऑर्डर 41 रूल 31, अपील का जजमेंट कैसे होना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये सब कुछ ऑर्डर 41 रूल 31 में दिया हुआ है। लार्जर बेंच ने अगर अपील किया हुआ है, डिसाइड रेफर होता है जजमेंट लार्जर बेंच की तरफ, और 3 जजेस करते हैं या 2 जजेस को डिसाइड करते हैं, मोर देन 1, वहां पे एक का ओपिनियन होता है हाँ, एक का ओपिनियन होता है ना, और वो बन जाता है एक रुका हुआ फैसला। देखा क्या मूवी हो? जिसे नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे देख लेना, सबसे बढ़िया मूवी है। या तो फिर रुस्तम में जो होता है आखिरी में जूरी जाते हैं, इसमें पहले सभी लोग उसको इज गिल्टी करते हैं, करके मैं बताता हूँ पिक्चर बहुत देखो लेकिन कानून क्या करते हैं। कौन सी? कहाँ है? मेरे पास एक भी OTT नहीं है, सॉरी। जब वो रेगुलर पे आएगा तब देखूंगा। तो कहती है अरेंज करो, दिखाओ, इतना पढ़ोगे मेरे से, हाँ? वो एक ड्रग है, वो एक ड्रग है। अभी तो इतनी अच्छी चीज इतना देखते बैठेगा, किसी बहुत अच्छी फ्री टाइम मिलता कैसे? वो तुमको कंप्यूटर मिलता है यार, लकी इंसान हो, फ्री टाइम मिलता है। पढ़ाई कब की? ये है नहीं, कभी भी पढ़ाई कर लेगी, कभी भी पढ़ाई भी कर लेगी। अभी जाने तो मजा करो, नहीं आवश्यक है कि लोग मजा करो। हाँ, तो ये जो है कि जहाँ पे 2 जजेस है, एक है हाँ में, एक है ना में, तो ऑर्डर 41 रूल 34 काम में आता है। अगर वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ ये जजमेंट के साथ, तो he has to give the reason why he is not, he is dissenting, he is not of the same opinion, he dissents from the opinion of the judge or the basic order, then he has to record the evidence, reason for that. और सेम है 41A, जो कौन सी कोर्ट को है? इलाहाबाद को है, कर्नाटक को है, हमको नहीं है। केरला को है, मद्रास को है। हाँ, 42 is second appeal. Second appeal. Order 42 is second appeal. इसमें 2 चीजें हैं। फर्क क्या है मालूम है क्या? देखो अच्छे से सुनो पहले। 41 में जो डिस्कस होता है फर्स्ट अपील में, वो फैक्ट्स होता है, अप्रिसिएशन टू द फैक्ट्स होता है, लॉ होता है, अप्रिसिएशन टू द लॉ होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अप्रिसिएशन टू द आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये सब के ऊपर अप्रिसिएशन देके फर्स्ट अपीलेट को डिसाइड कर सकता है। लेकिन जहाँ पे सेकेंड अपील होती है तो फैक्ट्स ये वो सब बाजू में रह जाता है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म होता है। नया जो इंटरप्रिटेशन मिलता है हर क्वेश्चन को, हर प्रोविजन को, वो सेकेंड अपील में मिलता है। वेदर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन सो एंड सो इन व्यू ऑफ दिस सेक्शन सो एंड सो इज प्रॉपर और नॉट। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया जाता है। सेकंड अपील इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली लॉ मस्ट बी अंडरस्टूड बाय मैक्सिमम पीपल, देन ओनली सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड।
यहाँ पे आपको फैक्ट्स के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे आप जनरल आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा एविडेंस रेड हुआ था, मैंने ये कहा था, वो कहा था, वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, ये कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सर बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन द जजमेंट तो ये बोला है, ये हाई कोर्ट ने ये बोला है, औरंगाबाद बेंच ने ये बोला है, लार्जर बेंच ने ये बोला है, फुल बेंच ने फलाना ढिमका बोला है करके ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो फ्रेम किया है वो मेरे फेवर का है। सामने वाला वो नहीं सर ऐसा नहीं है, इसकी 4 महीने के बाद ये जजमेंट आया था, इसमें ऐसा व्यू हुआ था, ये हुआ वो हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर सेकंड अपील होती है, वहां पे फैक्ट्स एविडेंस कुछ काम में नहीं आता। दिस इज ऑर्डर 42। क्लियर? ऑर्डर 42। हाँ और those second appeal मध्ये तोच डिसाइड होईल ना whether was proper or not. हाँ काँग्रेसची अपील झाली थोडी ना. What do you think? Appeals no? हाँ अब देखोगे तो ऑर्डर 43 रूल 1 में कौन से ऑर्डर्स अवेलेबल है उसकी यादी दी हुई है, पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये ऑर्डर जो है ये अपीलेबल है, ये अपीलेबल है, ये अपीलेबल है। जो यादी के अलावा है, काफी बार ऐसे होता है कि मेनी ऑर्डर्स नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वेदर आर अवेलेबल और नॉट। यहाँ पे आपको सिविल कोर्ट्स एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल एड में जनरल प्रोसेस एक्ट में रहता है, तो जनरल प्रोसेस एक्ट में मेरा एक छोटा सा है, लेकिन इसकी कॉमेंट्री पढ़ोगे ना तो डीप क्वेश्चन है, यू गो इन दैट, तो आपको उसका सहारा लेना पड़ता है कि नाउ वेदर द क्वेश्चन इज वेदर दिस ऑर्डर इज अपीलेबल और रिविजनेबल। फिर से वही देखना है, एनी ऑर्डर विच हैज रीच्ड द फाइनलिटी इज अपीलेट ऑर्डर, अपीलेबल ऑर्डर। तो फिर जो ऑर्डर क्वेश्चन में है उसको फाइनलिटी मिली कि नहीं मिली, और ये बात जो है ये सिंपल, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनलिटी मिली। ऑर्डर 6 रूल 17 ये रिविजनेबल है, ये अवेलेबल नहीं है। क्यों? अमेंडमेंट का एप्लीकेशन अलाउ हो या रिजेक्ट हो, सूट रुकता है क्या? सूट चलते रहता है, लेकिन 39 1 and 2 की एप्लीकेशन आइदर अलाउ और रिजेक्ट, उसके बाद फिर से एडजुडिकेट होती है क्या? वो नहीं होती, करके उसको फाइनल। ऑर्डर 7 रूल 11 की रिजेक्शन ऑफ प्लेट, उसके ऊपर फिर से एडजुडिकेशन होता है क्या? नहीं होता, करके वो अपीलेबल ऑर्डर। एनीथिंग व्हिच हैज रीच्ड द फाइनलिटी बाय दैट ऑर्डर, दैट एप्लीकेशन और दैट थिंग इट हैज रीच्ड फाइनलिटी, एवरी सच ऑर्डर इज अपीलेबल ऑर्डर, ऑल अदर ऑर्डर्स आर रिविजनेबल। ठीक है, तो 43 में क्या बोला है? सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्डर अपीलेबल है ये आपको पोपट पंची याद कर लेना है। ये ऑर्डर यहाँ अपीलेबल है, अपीलेबल मटका हिलाने का वो खड़ा आ जाता था, क्लियर? दिस इज ओनली टू बी रिमेम्बर्ड। हम लोगों को भी प्रैक्टिस हो गया, याद हो गया, हम देखेंगे क्या है यहाँ अपीलेबल। देखिए आपको याद करना है कि ये जितने भी 43(1) में दिए हुए हैं ये सब ऑर्डर्स अपीलेबल है, बाकी बचे सभी ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। मैं रिविजेबल नहीं बोल, ये अपीलेबल नहीं है, फिर रीट में जाने का या रिवीजन करने का वो सोचता हूँ। कॉम्प्रोमाइज का जो दिया हुआ है ना स्कोप, कॉम्प्रोमाइज डिग्री का, हाँ वो 1A पढ़ो। In an appeal against the decree passed in a suit after recording a compromise or refusing recording compromise, it shall be open to the appellant to contest the decree on the ground of that a compromise should or should not have been recorded. So, order 43 rule 1A sub rule 2. This is the remote exception. This is the remotest remote exception to the basic rule.
एंड हियर इंडियन पर्सन का जो अपील है वो मैंने पहले बता दिया ऑलरेडी। हाँ, तो हमारा सीपीसी यहाँ एज प्रॉमिस्ड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। आइडिया कुछ हद तक क्लियर हुई है बॉस? इसीलिए बोलता हूँ टीना को याद कर दो, टीना को बात कर दो। होता ना, अरे वो तुझी और क्या होना रही है? कैसी रे टीना पूछ लेना। दोनों तो वो भी बैग में लगे होते। वो मेरी रही थी अभी। यहाँ बैठे सभी हो गए। बोली क्या मतलब जिसका पिक्चर है अक्षय कुमार का बॉम्ब लगाता है जहाज में, उसको लेके आता है